Ghanshyam Tiwari, you've heard from the former UP DGP, you've heard from the BJP spokesperson. They're essentially saying there is a commission that's been set up that will investigate. He's saying, yes, this is something they're not happy about and that they hope to get to the bottom of what really went down. They're saying, don't politicize what happened. It's bad enough. We're investigating it and we hope to find out what went wrong. Good evening out to you, the viewers and fellow co-panelists. Maharaj Lavlesh Tiwari, in Maharaj Ji ki Sarkar, in front of 18 policemen, fired 18 rounds when the police could not even fire a single round. And Maharaj Lavlesh Tiwari is a former district president of Bajrang Dal. Was he limited to Bajrang Dal, RSS, BJP? No one knows. That he posts and boasts of pictures with senior leaders of BJP, and no one has reacted, no one has said a word. That instantly, in 30 minutes, senior cabinet ministers of BJP jubilate as if their design was successful, saying it's God's justice that Maharaj Lavlesh Tiwari has delivered to Maharaj Ji ki Sarkar. So BJP, whether it is a fake encounter, real encounter, conspiratorial killing, real killing, BJP is defense is blown away. There is the face of police and administration is blackened. When you elect a joker, you must expect a circus. A government that has more than 100 MLAs with criminal charges, who sent more than 100 members of parliament with criminal charges, where the chief minister himself had a charge related to murder until 2014, where the deputy chief minister had a similar charge until they started whitewashing it. This is what is expected. The challenge is that you are turning this into a Talibani system where the administration walks and talks like a gang, thok denge, and then every day you hear bum, dhamaka, the sound of bullets and this kind of spectacle. Let Rakesh Tripathi respond to what you're saying. It's the culture that's being, that's being created. He's also saying, Rakesh ji, that Lavlesh Tiwari was a Bajrang Dal member. इसके भाजपा के कई लोगों के साथ तस्वीरें हैं और उस पर हम कुछ सुन नहीं रहे कि ये बजरंग दल का है. अगर बजरंग दल का है तो वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बजरंग दल का कैसे हो सकता है बॉस. ये देखिए, घनश्याम तिवारी को ये अभ्यास है कि किसी भी मामले का कैसे राजनीतिकरण किया जाए और इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं. इसलिए बार बार महाराज शब्द लगा करके जिस तरह से उसका महिमा मंडन करने का प्रयास किया है ना, ये प्रयास करना बंद करिए. हमारे लिए अपराधी अपराधी है. उस अपराधी की जाति क्या है, उसका मजहब क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन किसके साथ है, इन सब बातों से परे मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिन अपराधियों ने ये दुस्साहसिक वारदात करने का काम किया है उनके प्रति किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. वैसी नरमी जैसी नरमी आपने राजू पाल की हत्या करने के बाद अतीक अहमद और अशरफ के साथ बरतने का काम किया था. अगर अतीक अहमद और अशरफ को जनाब और माननीय बना करके आपने संरक्षण न दिया होता ना, तो आज ये घटनाक्रम पर हम चर्चा ही न कर रहे होते. एक मामूली गुंडे को बड़ा माफिया डॉन गैंगस्टर बना करके और माननीय विधायक और माननीय सांसद बनाने का अपराध तो समाजवादी पार्टी ने किया है. Ghanshyam Tiwari, that's a very important point that Rakesh makes, that it is your party and the BSP in another case where the wife was actually with the BSP, but it's your party that made him an MP, made him an MLA, and you benefited. So your locus standi in questioning the BJP is weak in this case because you gave him sanrakshan, you gave him the protection, you allowed for his empire to spread in the way that he did. Yogi Adityanath can claim, I am only cleaning up Akhilesh's mess. I will respond in Hindi because he spoke in Hindi. Few days back, India Today आज तक carried the headline that भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन ब्रजेश सिंह उसको 51 लाख का चंदा देता है. ये उसने पुलिस के सामने कहा, लोगों के सामने कहा, लोग ताली बजा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ताली बजा रहे थे. इनके विधायक की चिट्ठी वायरल हुई. ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, उदय भान सिंह, अशोक चंदेल, अभय सिंह, इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं. तो जिन लोगों को इन लोगों ने पाल पोस के बड़ा किया है, पोषित किया है, जिनका चंदा ये लेते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है. जो अतीक अहमद ने आखिरी चुनाव लड़ा था, Times of India had a headline that Atiq would be the Hanuman for BJP in the Phulpur Bipole Lok Sabha election 2018, March 2018. तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ये है कि वो मोहरा खोज लेते हैं. महाराज लवलेश तिवारी मोहरा है या नहीं है, तहकीकात से पता चलेगा. मोहरा खोज लेते हैं, लेकिन स्वयं को संतों की पार्टी बताते हुए ये नहीं बताते कि ब्रजेश सिंह से 51 लाख का चंदा इनका विधायक क्यों लेता है. ये नहीं बताते कि देश को इतना बड़ा कलंक क्यों दिया कि 100 से अधिक सांसद इन्होंने देश में इस लोकसभा में भेजे जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं. जो इनके यहाँ अपराधी होते हैं वो आगे जाके गृह राज्य मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं. मर्डर, राइटिंग, डेकॉइटी, इनके 200, 300, 400, 500 कितने ऐसे विधायक और सांसद अभी हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं. मेरी अंतिम बात, इनका हर बात खोखला है. इनका जो अपराध से लड़ने का दावा है खोखला है,
अपराधी की जगह संत होने का दावा खोखला है, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का ये दावा कि पुलवामा में देश के जवानों की उन्होंने रक्षा करने की कोशिश की, वो खोखला है, जो सत्यपाल मलिक ने एक्सपोज किया। और ये भी बात उठी है कि उस खबर को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई सनसनीखेज रणनीति खोज रही थी। Sharad Pradhan, you've tracked the rise and the fall of the mafia in Uttar. Okay, Rakesh ji, 20 seconds. बोलिए, जल्दी बोलिए आप। घनश्याम तिवारी एक जाति के अपराधियों का नाम लेते लेते ये भूल गए कि इन्होंने अभय सिंह, जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, सिटिंग एमएलए हैं, अपनी ही पार्टी के विधायक का भी नाम ले लिया। आपका ये जाति और मजहब के आधार पर अपराधियों का विभाजन करना ना बंद कर दीजिए। एक भी भारतीय जनता पार्टी का ना विधायक है, ना सांसद है, ना भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देने का काम करती है। लेकिन अभय सिंह का नाम लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी पार्टी के एक विधायक का नाम ले लिया। और ब्रजेश सिंह साधु है, और ब्रजेश सिंह संत है, महाराज ब्रजेश सिंह, महाराज धनंजय सिंह नहीं, महाराज जी की सरकार है, महाराज लवलेश तिवारी, महाराज ब्रजेश सिंह, ये सब धोखाधड़ी जनता के साथ बंद कीजिए। जनता ने आपके चेहरे पे कालिख पुती हुई देखी है, आज के समय आप जनता को धोखा नहीं दे सकते। अरे भाई, जनता ने कालिख पुती हुई देखी है, राजू पाल की 2005 में हत्या होते हुए। 51 लाख। Okay. This is, I don't want to get into the caste of our criminals. It makes no sense. This is not right.